एकदम बातें नहीं. We need to complete the chapter today. So first, beta the first, we do one sum from investing activity, that is the illustration number. Illustration number, I suppose 12. 13. Yeah, sorry. Illustration 13. On page 273, we need to do illustration 13, and after that I discuss with you okay, what all things will come in the finance activity, and then we are supposed to do 2 sums to complete the chapter. And today we intend to complete the chapter. Let's start. Illustration 13. Let's start. From the following details of Bridge Mohan Limited, prepare a statement showing which statement? Cash flow from investing activity. We need to show the cash flow from investing activity. So investment in 12% debentures. Now see, in the previous year it was how much? 4 lakh. In the current year it's how much? 6 lakhs. So beta, investment in debentures of company, will it come in investing activity? Yes. So we need to see क्या करना है उसका. फिर मशीन देखो, पहले 2 लाख थे और अभी कितने हो गए? 4 लाख. तो मशीन is it our asset? So that will come in investing. Yes. लैंड एंड बिल्डिंग देखो, पहले कितना था? 6 लाख और अभी भी कितना है? तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ है. Not a problem. Furniture from 80,000 and now it's 1 lakh. Then from patent 1 lakh it became 80,000, and goodwill from 90 it became 60. Now additional information, all of you better please check. 20% depreciation we need to provide on machines. 10% depreciation we need to provide on, and in the beginning of the year 40% of the investments are being sold. Now if I see all these 3 adjustment and if I see the machine, अब देखो पहले कितना था? 2 लाख और अभी कितना हो गया? 4 लाख. नीचे उसके रिलेटेड क्या दिया है अपने को? एडजस्टमेंट भी दिया है. तो कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन तो है इसमें, ऐसा हम बोल सकते हैं. पहले थे 2, अभी हो गए 4, नीचे डेप्रिसिएशन की भी बातें हो रही हैं. मतलब देयर इज सम मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड वी नीड टू फाइंड दैट मिसिंग इंफॉर्मेशन. यस और नो? यस और नो? Can I say same is the case with investment? जरा चेक करो, पहले 4 लाख थे और अभी कितने हो गए? 6. और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेच भी दिए हैं, तो उससे भी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है. एंड इवन विद फर्नीचर. So because of those 3 adjustment, what are we doing? We make those ledgers and then we make our cash flow from investing activity. Come on, make the ledgers. Fatafat. First one, 10% investments. 10 है कि 12 है? 12% investment in debentures. बेटा उसका ledger बना लेंगे because there is adjustment related to that. This is debit. Particulars credit. Then we have some information about machines. We have information about machines. Particulars amount, this is debit. Particulars amount credit. And then we also need to make furniture ledger. Particulars amount, particulars amount. But after making these 3 ledgers, we make our statement showing cash flow from investing activity. Particulars amount
we have cash inflow 3-4 लाइन, cash outflow less cash inflow 3-4 लाइन and then less cash outflow। इतना बेटा हमें फॉर्मेट बना लेना है झपाटे, जल्दी से, कम ऑन। स्टार्ट करो। बेटा स्टार्ट करूं। बेटा स्टार्ट कर दूं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट बेटा इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। नाउ रेज योर हैंड। 4 lakh is opening balance and 6 lakh is closing. So where will I show that 4 lakh and 6 lakh in investment account? बेटा opening balance will show on the debit side. लिखो 2 opening balance 4 lakh and by closing balance 6 lakh. Okay. Then better tell me about machines. Where do I show opening balance of 2 lakh? Debit side, opening balance 2 lakh and better closing balance. Closing balance of rupees 4 lakh on the credit side. बहुत बढ़िया। देन लैंड एंड बिल्डिंग का तो कुछ हमने लेजर बनाया नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है उसमें। फर्नीचर जरा चेक करो। फर्नीचर व्हाट्स माय ओपनिंग बैलेंस? 80,000। सर आप हर एक में ओपनिंग डेबिट में लिख रहे हो, क्लोजिंग क्रेडिट में लिख रहे हो, ऐसा क्यों? असेट है यार, असेट में हमेशा ऐसा ही होगा ना। असेट में तो हमेशा ऐसा ही होगा। सर मुझे क्या पता क्या होगा। See the first adjustment now. See the first one. I need to provide 20% depreciation on machines. Now but I use your common sense. जो मशीन पर 20% depreciation देना है, do I have to calculate on opening balance or on the closing balance? The depreciation it should be calculated on opening or closing? Definitely, it's always from opening. We use it round the year, तो opening पर ही depreciation आएगा। तो raise your hand. Asset का ledger जो मैंने तुम्हें बनवाया था, where do I show depreciation? And what was the reason? The journal entry what I pass is depreciation to machine. Entry what I pass is depreciation to. So by depreciation, can I say 2 lakhs के कितने परसेंट है? 20%, that comes to 40,000. बहुत बढ़िया। Can I say same is the case with furniture? उस पे हमें कितना डेप्रिसिएशन देना है? 10%. So by depreciation
Again on the opening balance 80,000 का 10%, that's how much? 8,000. 80,000 का 10%, that is 8,000. फिर मेरा थर्ड एडजस्टमेंट जरा देखो. थर्ड एडजस्टमेंट, in the beginning of the year whatever investments we were having, out of that investment 40% के investment हमने sell off कर दिए. देखो जरा, how much value of investments? 40%. And I sold it at what price? I sold it at what price? So pay attention, pay attention. Whatever was me the amount of investment in the beginning, opening, 4 लाख के 40% अगर मैं निकालूं, so 1,60,000 क्या आएगा इसका बुक वैल्यू? 1,60,000 क्या आएगा अपना बुक वैल्यू? और ये 1,60,000 जरा चेक करो, एट व्हाट प्राइस डिड आई सोल्ड? तो इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख. सो बेटा प्रॉफिट करा के लॉस? प्रॉफिट करा के लॉस? कितने का? 1,40,000 का हमने क्या करा? आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्किंग एंड आई वॉन्ट जर्नल एंट्री ऑल्सो. 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख में बेचे, मतलब आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 140 फर्स्ट. कॉपी दिस वर्किंग एंड देन आई वॉन्ट जर्नल एंट्री. But I copy the working, then I want journal entry. Better raise your hand. Raise your hand. Anybody ready with the entry? Raise your hand. Dev. Cash account debit to profit to investment. Cash account debit to profit to please लिख लिया जाए. सही है एंट्री. Cash account debit 3 lakh to profit on sale of investments 1,40,000. To profit on sale of investments 1,40,000 and to investments कितना? 1 lakh 1,60,000. now बेटा if I have sold the investment तो वो कैश हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे. the investments are being sold at what price? 3 lakh. And profit in this ledger, where do we show profit? देखो मैंने pro forma लिखा दिया है. pro forma, where do I show it? Debit side. And if it's a loss, we show it on the credit side. To profit on sale, it is how much? 1,40,000. बेटा अपने पास और कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है? मतलब और कोई इंफॉर्मेशन है जो हम इस लेक्चर में डाल सकते हैं? क्लोज करिए, चलो क्लोज करिए. Which side total is more? 9 lakhs 9 lakh और उसमें से ये 5,40,000 माइनस कर दो. 3 lakh. बेटा now the most difficult part. Debit side there is a difference of 3,60,000. There is something missing. What is this missing information? Debit side. Yes, debit side missing है तो it is. तो यहाँ पर हम लिख देंगे to cash and bracket में लिख देंगे 3,60,000 के हमने नए इन्वेस्टमेंट परचेज करे. That was something missing which we found out. Okay. Now same apply for machines. 4,40,000. 4,40,000 उसमें से बेटा 2 लाख गए, बचे कितने? Again the difference is on the debit side.
Again it's cash. Again we have purchased. But again we have purchased. Then beta furniture again 1,08,000. उसमें से ये 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 28,000. But what's that? Purchase. Again purchase. Debit side again there is a missing information, so it's my purchase. But now most important thing, most important thing. From this 12% investment जो ledger मैंने बनाया, उसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी इंफॉर्मेशन मैं ले लूं? बेटा क्या ओपनिंग बैलेंस जावे, प्रॉफिट जावे, परचेज करें? यस, वो किधर जाएगा? आउटफ्लो. सो लिखा जाए परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड, आउटफ्लो में जाएगा. दैट्स 3,60,000. देन क्रेडिट साइड जाते हैं. इन्वेस्टमेंट तुमने बेचे. डू वी शो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? यस. तो इनफ्लो में लिखो सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट्स. एंड हाउ मच इज माय अमाउंट? 3 लाख. डू आई शो क्लोजिंग बैलेंस? नो, नेवर. नो क्लोजिंग बैलेंस टू बी शोन इन इन्वेस्टिंग. मशीन्स की लेजर में से जरा रेज योर हैंड. व्हाट इंफॉर्मेशन विल आई पिक अप? Opening, closing, no. Depreciation goes in operating. Purchase. So वापस it's my outflow. Purchase of machines. But how much? 2,40,000. Can I say from furniture also? Only the purchase of furniture would come in outflow. 28,000. And wait, let's go back to the main sum. Let's go back to the main sum. From investments we took the information that was required. From machines did we took the information that was required. Land and building, is there anything which I take it to investing activity? Why? 6 lakhs. 6 lakhs. No purchase? No sales. बहुत बढ़िया. Furniture, the information that was required taken. Patent. From 1 lakh it became 80,000. Is it sold के written off? Written off वाले. मतलब written off का मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा, डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं मैं. डेप्रिसिएशन. Patents are written off. कितने जन को written off बोलते हैं? How many of you say sale? Sale वाले, sale. Very good देव. क्यों sale है? पेटेंट सेल ही होगा कि रजिस्टर्ड होता है कि टेक्नोलॉजी कोई यूज नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन उस पे तो भाई डेप्रिसिएशन राइट ऑफ भी हम करते हैं ना. उस पे क्या राइट ऑफ नहीं होता है? अमोर्टाइज नहीं होता है क्या? वो होता ही है, बिल्कुल होता है. और यहाँ पर ये वही है. 1 लाख से जो 80,000 हुआ, इट्स नॉट सेल, इट्स अमोर्टाइजेशन, इट्स रिटर्न ऑफ. सर आपको कैसे पता चल रहा है? अगर कुछ बेचा होता तो लिखते ना, नीचू लिखते, कुछ तो इंफॉर्मेशन देते. गुडविल का जरा देखो, गुडविल का जरा ढूंढ के बताओ. 90 से 60 हो गया. 90 से 60 हो गई गुडविल. बेच दी 30,000 की गुडविल बेच दी सर हमने. बिजनेस की जो 30,000 की गुडविल थी वो बेच दी, 60,000 की रखी है हमारे पास. इज दैट पॉसिबल? इट्स अगेन रिटर्न ऑफ. एंड बेटा ये जो राइट ऑफ हो रहा है वो कौन सी एक्टिविटी में जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. द रिटर्न ऑफ पार्ट गोज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फिर जरा देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो 3 देख लिया. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा कहां? लिख लो. प्रीत, this is the last time I see your teeth. Preet, last time I see your teeth. If it happens now,
तेरे को लेक्चर में से मैं नहीं, पूरे यूएल में से तेरे को निकाल दूंगा मैं। और वैसे भी तुम एक दिन आए हो, इतने महीने से तुम एब्सेंट थे, वो बेटर था। खाली मम्मी को बोलो फीस भर दे तो टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, but how much is the amount? 60,000. So 3,60,000 का there is inflow, 6,28,000 का outflow, 2,68,000. This is my cash flow from investing activities. 2,68,000 my cash flow from investing activity. Okay. But then go on to page number 275. Go on to page number 275. But they are discussing about finance activity, yes or no? They are discussing about finance activity. Now, if we are concluding the chapter, let's revise. What did we see in operating activities? डे टू डे जो भी बिजनेस एक्टिविटी करी उससे जो पैसा वैसा आया, दैट वाज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने क्या देखा? वी आर परचेजिंग असेट्स, वी आर परचेजिंग और वी आर सेलिंग ऑफ द असेट्स, एंड बिकॉज ऑफ दोज असेट्स जो भी इनकम जनरेट होती है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में. जैसा अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये इंटरेस्ट मिला ना, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग. अब लास्ट कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंस. नाउ बेटा एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंस एक्टिविटी का क्या होगा मतलब कि द एक्टिविटी व्हिच आई डू टू प्रोक्योर फाइनेंस. प्रोक्योर का हिंदी में फाइनेंस कैसे बिजनेस में हमें लाना है, वो उसके लिए हम जो भी सारी एक्टिविटी करेंगे दैट इज माय फाइनेंशियल एक्टिविटी. जैसे बिजनेस में पैसा आएगा कैसे? अगर मैं कंपनी हूं, if I am a public company, तो बिजनेस में पैसा कैसे आएगा? I can give my shares, equity shares or preference shares to whom? Public. And will they give me paisa? Yes. That is one of the source of getting what? Getting what? Finance. तो ये एक्टिविटी फाइनेंस एक्टिविटी में आएगी कि लोगों को हमने अपने क्या दिए? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. इट में ऑल्सो हैपन ना कि हमने जो शेयर्स दिए हैं उनको हम बाई बैक कर ले, या तो एक टेक्निकल वर्ड है रिडम्पशन. रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट करना. तो हमने अगर लोगों से शेयर्स लिए हैं तो हम उनको रिडीम कर देंगे, उनका पैसा हम उनको वापस दे देंगे जब जरूरत नहीं लग रही है तब. अब शेयर्स देना इट्स वन ऑफ द सोर्स, बट कैन आई से आई आल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स. बट डिबेंचर्स भी मैं इश्यू कर सकता हूं. यस. कैन आई से हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाके लोन भी ले सकते हैं ना बैंक से. बैंक से हम क्या ले सकते हैं? लोन. शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं. जो शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड जो लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं. तो वो भी एक सोर्स है कि जहां से बिजनेस में क्या आएगा? फाइनेंस. तो व्हाट आर द सोर्स from where I can get finance? I can issue my shares, equity, preference. I can issue debentures. If I am issuing, तो ऐसा भी हो सकता है कि I have to redeem them. Redeem का मतलब क्या? उनका रीपेमेंट करना है. अब जब इश्यू करेंगे तब पैसा, रिडम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा. Sure. And then we are going to फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आई एम गोइंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से हमने शॉर्ट टर्म भी लोन ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म जो लोन है वो बैंक, लॉन्ग टर्म इट्स लॉन्ग टर्म. आर यू गेटिंग इट? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो हम सारा सोर्स से जो फाइनेंस आ रहा है, मान लो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं,
तो उनको हमें पेमेंट करना पड़ता है। कुछ लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया तो हमें सामने क्या देना पड़ेगा उनको? डिविडेंड। तो हम जो भी डिविडेंड दे रहे हैं वो भी जाएगा फाइनेंस एक्टिविटी में। इफ आई एम गिविंग देम, अगर मैं डिविडेंड उन्हें दे रहा हूं तो जाएगा वो किसमें? फाइनेंस एक्टिविटी में। क्यों मेरे को वो देना पड़ा डिविडेंड? क्योंकि लोगों ने हमारे क्या बाय करे हैं? शेयर्स। मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर लोगों ने हमारे क्या बाय करे हैं? डिबेंचर्स। मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर मैंने बैंक से क्या लिया है? लोन। तो बिकॉज ऑफ दिस मेनी थिंग्स आई हैव टू पे व्हाट? डिविडेंड, इंटरेस्ट। ये मेरे को पे करना पड़ेगा, और जो पे करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस इक्विटी शेयर्स, बिकॉज ऑफ दिस लोन्स, दैट इज वाई जो पेमेंट देना पड़ा है वो भी आएगा किसमें? फाइनेंस एक्टिविटी में। एक डाउट आना चाहिए तुमको। क्या डाउट आना चाहिए? सर हमने थोड़ी देर पहले देखा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये બધું આપણે કેમાં લખીએ છીએ? क्यों? क्या से अगर हमने वो असेट बाई करा है तो हमें डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टिंग दिया तो फाइनेंस। कंफ्यूज? क्या 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 समझाया? इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड। अब ये जो तुमको मिल रहा है किस खुशी में मिल रहा है तुमको? बिकॉज तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है, इस खुशी में तुम्हें क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर तुम पे कर रहे हो तो वो क्यों पे करना पड़ा? बिकॉज यू हैव प्रोक्योर्ड फाइनेंस। तो इसीलिए तुमको ये डिविडेंड और इंटरेस्ट तुम्हें पे करना पड़ा। तो वो भी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ठीक है। अब फाइनेंस एक्टिविटी के भी फॉर्मेट सेम टू सेम, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, वार्ता पति गई, सम डिस्कस करिए। अगर इफ इट इज कमिंग इन फाइनेंस एक्टिविटी तो हम वहां पर एफ लिखेंगे, और अगर इनफ्लो है तो प्लस, आउटफ्लो है तो એટલે एफ प्लस एफ माइनस। ने जे फाइनेंस में नहीं जतो है एना पर the sign which you see in your papers, the answer sheet, चौकड़ी, yes or no? सर मैं ब्लैंक छोड़ के आता हूँ, चौकड़ी नहीं आती है, ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है मेरे पेपर में। पेज नंबर 287, पेज नंबर 287, सम नंबर 20। बेटा 287, सम नंबर 20। फर्स्ट, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड भाई चौकड़ी। वेरी गुड। तो चौकड़ी રાખીને બાજુમાં લખો ઇન્વેસ્ટિંગ માં જશે। આ તો ક્યારે ભવિષ્યમાં રેફરન્સ માટે કામ લાગે। देन इक्विटी शेयर इश्यू, फाइनेंस, लेकिन प्लस के माइनस? इश्यू प्लस, तो एफ प्लस। रिडम्पशन, redemption of preference shares. I explained you the meaning. What do you mean by the word redemption? Repayment करना, F minus, F minus. Redemption of debenture, F minus. Borrowed loan, borrowed, F plus. Very good. Debenture interest paid, F minus. Dividend paid, दंड। ध्यान से, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव, पुट चौकड़ी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वेरी गुड। सेल ऑफ अ टीचर, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। पेड फॉर पेटेंट्स, मतलब पेड फॉर पेटेंट्स का मतलब आई हैव पेड मनी टू अक्वायर पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा 2 मिनट, कितना? 2 मिनट। मेक द फॉर्मेट, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो ऑन योर ओन। देन आई स्टार्ट विद सम नंबर 21 एंड देन वी कंप्लीट द चैप्टर। फटाफट
बेटा जो F प्लस लिखा है वो इनफ्लो में लिखो, जो F माइनस लिखा है वो आउटफ्लो में। And then give me the total, come on. Give me the total, come on. Better keep the quiets. But is the sum done? बेटा is the sum done? पक्की बात। बेटा what's your final answer? 91,000. What's your final answer? 91? Yes. The jantas are you getting? Yes. 91,000. But I'm proud of you. But please make the format for the last sum. We discussed, we put it down. The information we discussed, we put it down. That's how we solve it. Come on. Sum number 21. Let's start. But is everyone getting 91? बहुत बढ़िया. 91,000. Everybody getting. Better please make format for sum number 21. Please make format for sum number 21. All of use. Better dance. First. But at 10% debentures, in the previous year it was 1,95,000 and now it has become 2,45,000. Issued. Very good. And can I say issue of debenture क्या आता है finance activity में? Issue of debentures? Yes. It's inflow. लिखा जाए.
issue of debentures from 195 to 245, 50,000? Yes. So we write 50,000 issue of debentures. Then equity share capital from 250 it went to 345. But at 250 it went to 345. Again issued, very good. Issued of equity shares, how much? 95,000. 95,000. Issue of equity shares. Then 12% debentures. अब ये जरा ध्यान से 12% debentures from 1,50,000 it became 1,00,000. Redemption. So लिखेंगे that's outflow. Redemption of 12% debentures. Redemption of 12% debentures. 50,000. But then preference shares from 1,00,000 it became 80. From 1,00,000 it became 80. Redemption again. Redemption of preference shares, but how much is the amount? 20,000. 20,000. बहुत बढ़िया. Bank OD. From 68 it became 45. Can I say again repayment? So repayment of bank overdraft. How much? 23. But additional information देखो, debenture interest paid, outflow. Debenture interest paid, amount 12,000. 22,000 का equity and preference dividend दिया, outflow. Equity and preference dividend 22,000. But then paid for bank overdraft interest. Paid bank overdraft interest, how much? 4,000. But I make the totals. 1,45,000. 1,31,000. 14,000. So this is my cash flow from finance activity. That is my cash flow from finance activities, 14,000. But illustration 14. Illustration 14 will be your homework. That's only one sum. Illustration 14.